Director sir, can we start the event? Yes, sir. Please start. I am connected with mobile, so might be some problem in voice and other things. Please start. Okay, we'll take 2 more minutes and we'll start. Pooja ma'am, can we start? Yes, sir. You can start. Oh, okay. So, very good afternoon, everyone, to all the faculty members and invited keynote speaker, Mrs. Pooja Kumar. I, on the behalf of Buddha Institute of Technology, take this privilege to welcome all the faculty members and the director of the BIT for one-day webinar on intellectual property rights file. And this webinar will be taken by Mrs. Pooja Kumar. Before we start this webinar, first of all, may I request Dr. Arvind Pandey, who is the director of Buddha Institute of Technology, to please welcome our keynote speaker and to give a brief about this entire webinar. Please, sir. I will request Dr. Arvind Kumar Pandey, the director of BIT, to give a welcome note to our speaker. Sir, can you hear me, please? Thank you so much, Anku sir. Good afternoon to everyone. Anku sir, am I audible? Perfectly, sir. You are audible perfectly. Actually, I am connected through ID of Narendra Yadav sir. Hello. No, no problem, sir. Carry on, please. Good afternoon, Pooja ma'am. First of all, I and on behalf of Buddha Institute of Technology, I welcome you. And everyone is eager to listen your inputs related to IPR. In some sort of time, I will like to share some key points about Pooja ma'am. First point is she is very busy. Second one is she is very expert and punctual in her this particular expertise. And the third one is he is very sincere about his work and active also. So, ma'am, we can understand it is very precious time for your side, for us. With these words, I welcome you to please give your inputs and guide us related to concept of IPR. And I appeal all the faculty member of our group that please discuss all the points and concept related to the patent and copyright and other concept related to IPR and take the benefit of this occasion. Thank you so much. Thank you so much, Ankuji. Thank you, sir. Thank you, sir. Meanwhile, we have Mrs. Pooja Kumar, who is the founder and director of Innov Intellects U ILP established in 2017. She is also a registered patent agent and startup facilitator of Government of India.
She holds more than 15 years of experience in intellectual property rights file. She has won gold medal in master's degree in microbiology and food technology from Punjab University, Patiala. Beside that, she had also qualified GATE exam in 2008 and Indian Patent Agent exam in 2010. She has delivered more than 200 awareness programs related to intellectual property rights. Recently, in 2020, she is recognized as top woman consultant for her contribution in the field of IPR. She has impaneled with Gujarat Innovation Council. She is not only creating IP awareness in India but also working for international countries. Recently, she is invited as panelist in Nigeria for one IP radio station. She has received various awards and recognition in her professional journey. I will also like to highlight that she has filed more than 500 patents. So it's our privilege to have you as a keynote speaker for this webinar, and we'll also signing an MOU with her. So may I request Mrs. Pooja Kumar to deliver her speech related to the IPR. Please, ma'am, I hand over this platform to you. Thank you. Thank you. So I've just shared my screen. So is it visible to all of you? Yes, yes, it is visible. Okay, just wait. So I'm very thankful, Arvind sir, who gave me an opportunity here to give you an interactive session on intellectual property rights. And sir has already given my introduction that I'm working with a lot of universities. I started my career with Amity University in 2000, I think in 2009, where we have established the IPR cell of Amity University, and where the inventors come to us and they discuss their inventions, and based on their inventions we do the novelty search, and after carrying out the novelty search, if the invention is novel or not, then we send the inventors that whether you can proceed for the patent filing or not. So these type of things we carried out in the IPR cell. After moving to after having more than 15 years of experience, I started my own firm. The name of my firm is Innov Intellects, and where I started with Kite Engineering College, Ghaziabad. I signed an MOU with 2018. Then after Kite, I moved to Meerut, like Shubharti University, MIT. After MIT, I got a Manipal University, Vanasthali. I am now working with a lot of universities and colleges for not only for creating the awareness but also for filing their trademarks, copyright, designs, and all IP work. So that today's lecture that is about intellectual property rights. So as we all know, what is intellectual property? Intellectual property is a creation of human mind. आप जितनी भी फैकल्टीज हैं, आप कुछ ना कोई रिसर्च पेपर आप लोग लिखते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च आप लोग कर रहे होते हैं. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसके अंदर जरूर होती है. आइदर इट कैन बी कॉपीराइटेड, आइदर इट कैन गो फॉर पेटेंट, आइदर देयर इज सम डिजाइंस व्हिच आर नोवेल यू कैन फाइल अंडर इंडस्ट्रियल डिजाइन. बट समहाउ हम लोग क्या करते हैं, इस अपनी रिसर्च पेपर को ही हम लोग पब्लिश कर देते हैं. सबसे पहली गलती जो हम करते हैं. सो पेटेंट ऑफिस का एक सबसे इम्पोर्टेंट थंब रूल है कि अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट किया, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, तो यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज योर पेपर, यू डोंट हैव टू पब्लिश योर पेपर अनलेस एंड अंटिल फर्स्ट यू फाइल द पेटेंट. ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना पेटेंट फाइल करना है, उसके बाद ही आप उसकी पब्लिकेशन के लिए जाएंगे. तो हम लोग उल्टा करते हैं, हम पहले पब्लिश करते हैं फिर पेटेंट फाइल करते हैं. नहीं, अगर आपके पास कोई रिसर्च पेपर है, आप उसको पेटेंट करना चाहते हैं, तो पहले आप उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में प्रोटेक्ट करें, उसके बाद ही उसका पब्लिकेशन के लिए जाए. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल राइट्स है जो कि डिफाइन नहीं होते यानी फिजिकल पैरामीटर्स के, कोई फिजिकल पैरामीटर नहीं है उसको डिफाइन करने के लिए. ठीक है, पेटेंट ऑफिस का एक क्राइटेरिया और है कि लोगों के पास थोड़ा मिथ होता है कि भाई मुझे प्रोटोटाइप पहले बनाना है पेटेंट करने के लिए या नहीं. देखो, पेटेंट ऑफिस को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोटोटाइप की, बट अगर कभी हुई इन एफईआर के टाइम पे दे विल आस्क द क्वेश्चंस, भाई आपको प्रोटोटाइप सबमिट करना है, तो तब आपको रिक्वायरमेंट होती है. अदरवाइज पेटेंट ऑफिस को सिर्फ आइडिया, जो भी आपका आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में हम उसको पेटेंट ऑफिस में प्रोटेक्ट करते हैं. और एक पेटेंट को फाइल होने और ग्रांट होने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं, बट उसी को पेटेंट ऑफिस ने थोड़ा एक्सपर्डाइट कर दिया है, स्पीड अप कर दिया है, जिसमें आपका पेटेंट 1 साल के अंदर भी ग्रांट हो सकता है. वो किन कंडीशन में ग्रांट हो सकता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी. कि अगर आपकी कंपनी कोई स्टार्टअप है,
अगर आपके एप्लीकेंट में कोई फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपकी कोई कंपनी एमएसएमई है, और जो दूसरा अभी यूनिवर्सिटीज के लिए रूल नया अपडेट हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि 80% रिबेट दिया जाएगा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को, जहां एक अटॉर्नी मतलब एक पेटेंट फाइलिंग की जो फीस हम लोग चार्ज करते थे 30 to 40,000, वही आपकी घट की बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हो गए, जिसमें सर्चिंग भी होगी, ड्राफ्टिंग भी होगा, पेटेंट फाइल भी होगा। दूसरी बात, जो 8,000 गवर्नमेंट फीस थी वो घट के आपकी 1,600 हो गई है, ठीक है, और जो 20,000 एग्जामिनेशन के चार्जेस है वो भी आपके कम होके 4,000 पे आ गए हैं। तो ये जो रिडक्शन हुआ है फीस में, जिससे की वजह से क्या होगा, जो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स में जो रिसर्च हो रही है उससे आप लोगों को प्रमोशन मिलेगा, आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि आप अपने पेटेंट्स के आइडियाज को आगे जाके अपने पेटेंट को फाइल करें। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी आइडिया, ठीक है, चाहे वो प्रोसेस हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई कॉम्पोजिशन हो सकता है, कोई फॉर्मूला हो सकता है। कोविड के सिचुएशन में सपोज आपने कोई वैक्सीन बनाई, अब आपको वैक्सीन पे पेटेंट फाइल करना है, या आपने कोई काढ़ा बनाया, काढ़ा को पेटेंट फाइल करना है। तो कुछ भी ऐसी इन्वेंशन जिसमें आपको लगता है कि आपने किसी प्रॉब्लम का एक नया सॉल्यूशन ढूंढा है, उसको आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि पेन, एक नॉर्मल पेन है मेरे पास, पेन में मैंने क्या कि कैमरा लगा दिया तो मैं उसके ऊपर पेटेंट फाइल कर सकती हूँ। पेन के अंदर मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी तो मैं पेटेंट फाइल कर सकती हूँ। तो एक पेन के अंदर आप देखो, अगर मैं पेन के अंदर कितनी सारी मॉडिफिकेशन करती हूँ, कैमरा लगाने से नया पेटेंट होगा, ठीक है, और रिकॉर्ड करने से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये नए फीचर्स जो मैंने डाले हैं एक प्रोडक्ट के अंदर, दैट कैन बी फाइल्ड under the patent category with the multiple patents. Next, these are the rights which are given to a person over the creation of mind. और जब भी आप पेटेंट फाइल करें तो सबसे पहले पेटेंट ऑफिस का रूल है कि आपको अपना पेटेंट जब भी आप फाइल कर रहे हैं तो आपको पेटेंट ऑफिस को बताना होगा कि आपका पेटेंट यूनिक कैसे है, कैसे डिफरेंट है दूसरों के प्रोडक्ट से। जब तक आप पेटेंट ऑफिस को ये बताएंगे नहीं तो पेटेंट ऑफिस आपको पेटेंट ग्रांट नहीं करेगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट थंब रूल कि आपको अपनी इन्वेंशन में नॉवेल्टी बतानी है कि आपकी इन्वेंशन की नॉवेल्टी क्या है। नेक्स्ट, like other real property, it can be bought, sold, licensed और exchange। जैसे कि आप अपने घर को बेचते हैं, कार को बेचते हैं, वैसे ही अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी आप रेंट पे बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे मैम कैसी बात कर रही है, देखिए, आपने कोई एक डिवाइस बनाया है, ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर, सपोज आपने एक डिवाइस बनाया है, ठीक है, जो कि मिल्क की अडल्ट्रेशन को चेक कर रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने पेटेंट फाइल कर लिया। पेटेंट फाइल करने के बाद आप क्योंकि एक इन्वेंटर है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उस डिवाइस को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में प्रोड्यूस करें। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आफ्टर फाइलिंग पेटेंट यू हैव टू फाइंड आउट द कंपनीज। आप कंपनीज फाइंड आउट करेंगे और आप उनसे बोलेंगे जी मेरे पास एक डिवाइस है जो कि मिल्क की अडल्ट्रेशन को चेक करती है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही एफिशिएंट है, 1 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, और मैं इसको आपको सेल करना चाहता हूँ। अगर वो कंपनी उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाती है, उनको लगता है कि वाकई में जो आपने इन्वेंशन बनाई है इट इज वेरी पावरफुल, तो वो आपके प्रोडक्ट को, सामान को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, इन्वेंशन को और सेल लाइसेंस करने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बेसिस पे एक इन्वेंटर और एक कॉलेज को क्या फायदा होता है, एक कॉलेज को उसकी रॉयल्टी मिलती है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, जब भी हम पेटेंट फाइल करते हैं तो वी हैव 2 कॉलम्स, वन इज इन्वेंटर एंड अदर इज एप्लीकेंट। इन्वेंटर, इट कैन बी नंबर ऑफ इन्वेंटर, आपकी पेटेंट एप्लीकेशन में कितने मर्जी इन्वेंटर हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। बट एप्लीकेंट कैन बी द यूनिवर्सिटी, एप्लीकेंट कैन बी द इन्वेंटर, और एप्लीकेंट कैन बी द कंपनी। एप्लीकेंट, जब आप सोच रहे हैं व्हाट इज एप्लीकेंट, द रूल ऑफ एप्लीकेंट इज एप्लीकेंट के ही सारे राइट्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी एप्लीकेंट, अगर मेरा एमओयू यूनिवर्सिटी के साथ होता है तो उस केस में आपका एप्लीकेंट कौन होगा, आपकी एप्लीकेंट होगी आपकी कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूट, और इन्वेंटर में आप XYZ जो भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है आईपीआर पॉलिसीज के हिसाब से। हर कॉलेज की अपनी एक आईपीआर पॉलिसी होनी चाहिए, जिस पॉलिसी में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए कि अगर कोई पेटेंट का लाइसेंस होता है तो उस केस में हम 60-40 का रेशियो रखेंगे, 70-30 का रेशियो रखेंगे। जैसे एमिटी में भी था, एमिटी में 70-30 का रेशियो था। तो 70% जो है यूनिवर्सिटी को जाएगा अगर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, और 30% इन्वेंटर को जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ आईपीआर पॉलिसी के अंदर ये सारे पॉइंट्स जरूर होने चाहिए, सो दैट कि इन फ्यूचर कोई भी यू कैन से कोई अगर लाइसेंस होता है तो कोई प्रॉब्लम्स ना आए। नेक्स्ट,
What types of IP we have? We have different types of IPR, like I already discussed. We have trade secret, we have trademark, we have designs, copyright, patents, utility model, and trade secret. So I'll discuss one by one. So where is the office? इंडिया में हमारे 4 ऑफिसेज हैं जहाँ पे हम अपने पेटेंट को फाइल कर सकते हैं. तो इंडिया में वी हैव दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कलकत्ता. ओके, सो इन चारों ऑफिसेज में आप अपना पेटेंट फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट, नागपुर में आपका ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना कोई भी ट्रेनिंग, आईपीआर से रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकते हैं. नेक्स्ट आपका वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एजेंसी आपकी कोई भी पेटेंट अगर आपको फॉरेन में फाइल करना है, ठीक है, अगर आप पीसी के एप्लीकेशन के लिए जाना चाहते हैं, कोई फॉरेन एप्लीकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो वाइपो के थ्रू आप अपने पेटेंट को फाइल कर सकते हैं. अब इंडिया और वाइपो में फर्क क्या है? इंडियन पेटेंट ऑफिस आपकी सिर्फ टेक केयर करता है सिर्फ इंडियन पेटेंट को. आप इंटरनेशनल पेटेंट के लिए इंडिया में ये नहीं राइट सिक्योर कर सकते कि इंडिया में मैंने फाइल किया तो इंटरनेशनल पेटेंट मेरा सिक्योर है. नो, इंडिया में फाइल करने के विद इन 12 मंथ्स टाइम में आपको टाइम पीरियड मिलता है जहाँ पे आप अपने बाहर भी पेटेंट एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं. बट टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने आज एक पेटेंट इंडिया में फाइल किया है तो आज से आपको 1 साल का टाइम मिलता है अपने एप्लीकेशन को पीसीटी रूट के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज में फाइल करने के लिए. Why registration of IP is important? Registration of IP is important क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से, टीएम लिखने से, कॉपीराइट सर्कल सी लिखने से क्या हो रहा है? आपके राइट्स लीगली सिक्योर हो रहे हैं. आप दूसरे पर्सन को अलाउ, क्रिएटर को मना कर रहे हैं कि भाई आप मेरी बिना परमिशन के मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते. अब डायग्राम में चेक कीजिए, देखो राइट साइड में एक डायग्राम बनाया मैंने, उसमें लिखा है आई इन्वेंटेड फायर बट नाउ एवरीवन इज यूजिंग इट फॉर फ्री. ओके, सो आपने कुछ इन्वेंट किया, ठीक है, बट क्या कर रहे हैं लोग? सब यूज कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट की. अब मुझे अगर उनको स्टॉप करना है तो देन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो अगर आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करेंगे तो लोग आपकी बिना परमिशन के उसको यूज नहीं कर सकते हैं. और अगर जब तक वो परमिशन अगर नहीं लेंगे, जैसे सपोज किसी को कोई फ्रेंचाइजी भी लेनी होती है, मैकडी का अगर कोई आउटलेट भी खोलना है तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी होगी. अगर वो बिना परमिशन के खोल लेता है तो उसको उसके लिए लीगल नोटिस मिल सकता है. सो दैट इज व्हाई द लीगल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, इट एक्सक्लूड अदर फ्रॉम यूटिलाइजिंग, कॉपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट. द क्रिएटर हैज द लिबर्टी टू सेल और लाइसेंस हिज क्रिएशन. जैसे मैंने बताया कि क्रिएटर के पास क्या फाइनल फायदा क्या है पेटेंट फाइल करने से? उसको लिबर्टी है कि वो अपनी इन्वेंशन को, राइट्स को लाइसेंस कर सकता है, जिसके बदले में वो पैसे कमा सकता है. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क आप अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का, अपने इंस्टीट्यूट के लोगों का, अपने नाम का ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हैं. जब भी आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, ट्रेडमार्क के राइट्स आपको 10 ईयर्स के लिए मिलते हैं. 10 ईयर्स में आप अपना ट्रेडमार्क दोबारा रिन्यू करते हैं. ट्रेडमार्क की कैटेगरी में आप कोई वर्ड, कोई लेटर, कोई लोगो, ये सब चीजें आप ट्रेडमार्क की कैटेगरी में फाइल कर सकते हैं. ट्रेडमार्क जैसे आप फाइल करते हैं, यू राइट टीएम, टीएम के बाद आप उसको रजिस्टर आर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए आपको ट्रेडमार्क के डिफरेंट क्लासेस के लिए जाना होता है, क्लास 1 से लेके 45, जिसमें आप डिफरेंट क्लासेस में अपना ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हैं. ट्रेडमार्क की एक जो नॉर्मल कॉस्ट है वो 4500 है, और अगर कोई यूनिवर्सिटी या कंपनी फाइल करती है तो उसकी जो फीस है वो 9000 रुपीज है. ये ट्रेडमार्क का आप देखिए रजिस्ट्रेशन सिंबल आर सर्कल में, जो मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है कि आफ्टर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन द ट्रेडमार्क सिंबल कैन बी अटैच्ड सर्कल आर. Now after trademark, so this is the difference. TM और R are registered में अगर आपने ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है अपने प्रोडक्ट के लिए तो आप TM लिख सकते हैं, और सर्कल R तब लिखेंगे जब आपको सर्टिफिकेट फाइनली पेटेंट ऑफिस से मिल जाएगा. Now next important intellectual property one, that is patent. पेटेंट मैंने आपको बताया पेटेंट क्या होता है. पेटेंट एक मोनोपोली राइट है जो गवर्नमेंट आपको देती है. पेटेंट आपको मिलता है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके प्रोसेस के लिए. पेटेंट के राइट्स आपको 20 ईयर्स के लिए मिलते हैं. 20 ईयर्स के बाद आपको इनको रिन्यू करना होता है, ठीक है. पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं 20 ईयर्स के बाद, सॉरी. ओके, पेटेंट जो है वो आपकी लिमिटेड ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री, मतलब आपके जो पेटेंट के राइट्स हैं वो आपको पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको मिल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मैंने इंडिया में पेटेंट फाइल कर लिया तो पूरे वर्ल्ड में मेरे राइट सिक्योर हो गए. नो, पेटेंट राइट्स आर रिलेटेड ओनली विद द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री. जिस कंट्री में आप पेटेंट फाइल करेंगे उसी कंट्री में आपका जो पेटेंट है वो सिक्योर होगा. नेक्स्ट, व्हाट कैन बी पेटेंटेड. अब कोई भी इन्वेंशन आप लेके आते हैं, ठीक है, और आपने बोला IoT बेस्ड एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग डिवाइस, IoT बेस्ड एग्रीकल्चर पैरामीट्रिक सॉइल मॉनिटरिंग पैरामीटर डिवाइस, ठीक है. आपने कहा जब मैम हमने एक IoT बेस्ड डिवाइस बनाई है जो एग्रीकल्चर के सारे पैरामीटर्स को मेजर कर रही है,
तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये होगा, आप ये बताइए कि आपने जो IoT डिवाइस बनाई है वो औरों से कैसे फर्क है। आप बताएंगे कि जो और है वो ये पैरामीटर्स मेजर कर रहे हैं, पर हमारी जो डिवाइस है हम ये भी पैरामीटर्स को लेके चल रहे हैं। दूसरा, आप इंटरनेट पे उस पर मैसेज मिल जाएगा, मोबाइल पे आप मैसेज चेक कर सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये डिफर है हमारी ऑलरेडी नोन प्रायर आर्ट से। सो दिस इज द फर्स्ट नोवेल्टी ऑफ द इन्वेंशन। सेकेंड, हाउ यू कंपेयर द इन्वेंशन विद द प्रायर आर्ट। जो प्रायर आर्ट में ऑलरेडी IoT बेस्ड डिवाइसेस अवेलेबल है, उनसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक टेबल बना के मुझे बताइए कि उनसे आपकी इन्वेंशन कैसे बेटर है, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है, देन यू हैव टू प्रूव द टेक्नोलॉजी वाइज द रिजल्ट्स। नेक्स्ट, थर्ड इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अगर आपकी इन्वेंशन इंडस्ट्रियली कमर्शियल वैल्यूबल है मार्केट में, तभी आपके जो पॉइंट्स हैं वो अवेलेबल मेट करते हैं तीनों क्राइटेरिया को। तो आपकी इन्वेंशन में अगर ये तीनों क्राइटेरिया मेट हो रहे हैं कि नोवेल्टी भी है, नॉन ऑब्वियसनेस भी है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, तभी पेटेंट ऑफिस आपको आपके पेटेंट के लिए पेटेंट ग्रांट करता है। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे बहुत हाँ जी सर। Ma'am, हाँ now जी you सर। are audible. यस सर, वो सर हमारे यहाँ लाइट प्रॉब्लम, लाइट चली गई थी तो इसलिए वो दिक्कत हुई। शेयर्स मैं दोबारा शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, ठीक है सर। Okay, okay, okay. ओके, जस्ट सो आई हैव टेकन अ वेरी गुड एग्जांपल हियर, फोल्डिंग पोर्टेबल आयरन। ठीक है, अब आपको ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि जो फैकल्टीज मैकेनिकल से हैं, ठीक है, या फिर किसी ने कोई एक डिवाइस इन्वेंट की है, तो आप एक डिवाइस में वी डोंट हैव एनी। यस सर, हेलो 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 अरविंद सर। Ma'am, please carry on. No problem. ओके, सो फोल्डिंग पोर्टेबल आयरन जो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, लाइट वेट आयरन है जो कि जिसका पेटेंट प्लस डिजाइन दोनों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ कि अगर आपके पास कोई डिजाइन है, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि सिर्फ नॉवेल्टी डिजाइन में है, टेक्नोलॉजी में कोई नॉवेल्टी नहीं है, तो आप उसके लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप अपना सिर्फ डिजाइन, जैसे अब ये प्रेस मैंने एग्जाम्पल लिया है फोल्डिंग पोर्टेबल आयरन। फोल्डिंग पोर्टेबल आयरन की टेक्नोलॉजी भी पेटेंटेड है और इसका जो डिजाइन है, आप यूनिक जो डिजाइन देख रहे हैं, दैट इज आल्सो इंडस्ट्रियल डिजाइन रजिस्टर्ड, दैट इज कॉल्ड, सम कंट्रीज में हम इसको डिजाइन पेटेंट बोलते हैं और इंडिया में हम इसको इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द सीएस, लाइक कैन सॉफ्टवेयर बी पेटेंटेड। जो आईटी के और सीएस के फैकल्टीज हैं उनका क्वेश्चन रहता है कि मैम हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स हैं, हमें उनको पेटेंट फाइल करना है। तो यस, सॉफ्टवेयर कैन बी पेटेंटेड ओनली एंड अनटिल अदर व्हेन यू एम्बेडेड ए हार्डवेयर इन दैट। जब तक आप उसके अंदर हार्डवेयर एम्बेड नहीं करेंगे तो पेटेंट ऑफिस उसको ग्रांट नहीं करेगा। तो जो भी यस सर, so there are lot of disturbance. Arvind sir, Dr. Vinay sir, please unmute yourself. I will request each and every faculty members to mute yourself.
नाउ Yeah, ma'am, please. सॉफ्टवेयर के केस में अगर हमें पेटेंट फाइल करने हैं तो आपको हार्डवेयर लिंक दिखाना होगा. नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम में आप कॉपीराइट फाइल कर सकते हैं जिसमें आपको 2 मंथ्स के अंदर आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाता है. तो पेटेंट ऑफिस की जो कॉपीराइट का क्राइटेरिया है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेटेंट एंगल. कॉपीराइट के केस में कॉपीराइट ऑफिस बोलता है कि यू ओनली हैव एल्गोरिथम, तो आप ऑब्जेक्ट कोड एंड सोर्स कोड आपको पेटेंट ऑफिस में प्रोवाइड करना होगा. ओनली देन दे इशू अ सर्टिफिकेट फॉर द कॉपीराइट. बट इन केस ऑफ पेटेंट यू हैव टू शो द हार्डवेयर इन दैट. अदरवाइज पेटेंट ऑफिस उसको सेक्शन 3K में ऑब्जेक्शन रेज करता है, जो कि आपको फिर बताना होता है कि आपको इसमें क्या आपने हार्डवेयर इसमें यूज किया. Now if I'm talking about the pharmaceutical inventions, okay, chemistry or pharmaceutical inventions, फार्मास्यूटिकल के केस में आप डिवाइस, मॉलिक्यूल, प्रोसेस, कोई भी कॉम्पोजिशंस, कोई भी फॉर्मुलेशंस पे पेटेंट फाइल कर सकते हैं. पेटेंट ऑफिस का कहना है कि अगर आप मॉलिक्यूल्स पे पेटेंट फाइल कर रहे हैं तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज जो है उनकी एफिकेसी शो करनी होगी कि आप उनकी इनहांस एफिकेसी के रिजल्ट उनको दिखाएं. अदरवाइज पेटेंट ऑफिस उसको भी सेक्शन 3 में, जो कि नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन है, उसमें फॉल कर देता है. नेक्स्ट आपका है, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपकी पेटेंट ऑफिस के अंदर पेटेंटेबल हो. देयर आर सर्टेन लिमिट्स ऑफ द पेटेंट ऑफिस ऑल्सो, कि कुछ चीजों पे पेटेंट ऑफिस आपको डिनाई करते हैं कि नहीं, हम इन चीजों पे आपको पेटेंट फाइल नहीं करने देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई बल्गरी मशीन बनाई है, कोई थेफ्ट मशीन बनाई है, चोरी करने की मशीन बनाई, कोई करेंसी छापने की मशीन बनाई, तो ये सब चीजों के लिए पेटेंट ऑफिस आपको एक्सक्लूड करता है कि नो, यू डोंट गेट ए पेटेंट ऑन दिस सच टाइप ऑफ डिवाइसेस. तो एग्रीकल्चर डिवाइसेस, अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, तो मेथड पेटेंटेबल नहीं है, पर डिवाइसेस पेटेंटेबल है. और अगर मैं बात करती हूँ कोई ऐसा वर्क जो कि आपका कॉपीराइट कैटेगरी में फॉल करा और आपने पेटेंट में फाइल कर दिया, तो उसके लिए भी पेटेंट ऑफिस आपको सेक्शन 3 में ऑब्जेक्ट कर देगा कि ये जो वर्क था ये आपका कॉपीराइटेड था, ना कि पेटेंट के लिए था. नेक्स्ट, आप डिस्कवरी काइंड ऑफ वर्क को भी पेटेंट नहीं कर सकते. अगर आपने कोई डिस्कवरीज की है, ठीक है, रिसर्च पेपर है, कोई डिस्कवर किया आपने कुछ, आप कह रहे हैं कि मैम ये हमारी डिस्कवरी है, तो डिस्कवरी को भी पेटेंट ऑफिस अलाउ नहीं करता है टू गेट अ पेटेंट. डिस्कवरी हुई, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हुए, सॉफ्टवेयर ऐप हुआ, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, एटॉमिक एनर्जी, living and non-living things occurring in the nature, mathematical and business methods. All these things are not patentable under the patent office. Now, if I'm moving to the benefit of IPR for the startups, हर एक यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा आजकल इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं. इंक्यूबेटर सेंटर्स के अंदर जो स्टार्टअप रजिस्टर्ड होती हैं, तो स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है कि अगर वो स्टार्टअप अपना पेटेंट फाइल करती हैं तो उसके लिए दे डोंट हैव टू वरी, बिकॉज आपको भी पता है एक स्टार्टअप के पास इतना फाइनेंस पैसे नहीं होते कि वो मतलब एक अमाउंट उसमें पेटेंट फाइलिंग से लेके ग्रांट तक लगाए. बट उनके लिए पेटेंट ऑफिस ने कहा है कि यू डोंट हैव टू वरी. सो वी हैव एलोकेटेड सम स्टार्टअप फैसिलिटेटर्स, जैसे मैं भी एक स्टार्टअप फैसिलिटेटर हूँ, जो कि आपकी हेल्प करती हैं पेटेंट फाइलिंग में. ठीक है, पेटेंट फाइलिंग में, स्टार्टअप्स के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में और डिजाइन रजिस्ट्रेशन में. अगर आपके पास DPIIT का सर्टिफिकेट है, तो DPIIT का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप 80% रिबेट ले सकते हैं पेटेंट फाइलिंग में भी और इनकम टैक्स के अंदर भी. और जिनका DPIIT का सर्टिफिकेट होता है तो उनको फर्स्ट 3 इयर्स आई थिंक इनकम टैक्स के लिए भी उनको थोड़ा वो फ्री होता है उनका. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए? अगर आपको अपनी स्टार्टअप कंपनी को रिकॉग्नाइज करना है, कोई भी स्टूडेंट्स के आइडियाज को अपने स्टार्टअप में रजिस्टर करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपनी कंपनी बनानी होगी, एक आइडेंटिटी बनानी होगी कंपनी की, जो कि रजिस्टर्ड हो, LLP हो या पार्टनरशिप फर्म हो. टर्नओवर आपका दैट शुड नॉट बी लेस देन 100 करोड़. 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर का. एंटिटी आपकी कंसीडर्ड टू बी ए स्टार्टअप अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. 10 साल से पुरानी आपकी कंपनी नहीं होनी चाहिए. और जो स्टार्टअप है एक इनोवेटिव सॉल्यूशन के लिए अगर काम करिए तो ही पेटेंट ऑफिस आपको DPIIT का सर्टिफिकेट ग्रांट करता है. नाउ, टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन. इंडिया में जो हम पेटेंट फाइल करते हैं जनरली दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पेटेंट एप्लीकेशन. पर इंडिया से बाहर अगर वही पेटेंट आप फाइल कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पेटेंट ऑफ PCT रूट और कन्वेंशन रूट के थ्रू फाइल कर सकते हैं. अगर आपने इंडिया की जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए तो आप पेटेंट ऑफ एडिशन के थ्रू फाइल करते हैं. नेक्स्ट, हु कैन फाइल अ पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया? अब आइडिया आपके पास है, ठीक है. अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट उठता है कि मैम कौन फाइल कर सकता है? मैं खुद एज ए इन्वेंटर पेटेंट फाइल कर सकता हूँ. यस, you can also as an inventor you can file your patent application, or you can take the help from the legal representative like us, who we are the patent attorneys who help you in developing the patent filing process. मतलब पूरा सर्चिंग से लेके ग्रांट तक हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं. एंड सर्चिंग हुई, ड्राफ्टिंग हुई, फाइलिंग हुई, कोई नाम अगर इन्वेंटर का चेंज करना है,
कहीं पे कुछ सिग्नेचर, कुछ आपके एप्लीकेंट के नाम में कुछ गड़बड़ है, तो एवरी फॉर्म, एवरी लीगल फॉर्मेलिटीज वी विल हेल्प यू in rectification. Next, types of specification. Now we have two types of specification. One is idea patent. ठीक है, आपने सुना होगा कि आइडिया है सिर्फ मेरा अभी, बट मेरा वर्क अभी रेडी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे पेटेंट फाइल करना है। पेटेंट फाइल करने के लिए आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर सकते हैं कि अगर सिर्फ आइडिया है आपके पास, तो आइडिया के बेसिस पे आप फाइल करें। प्रोटोटाइप अभी रेडी नहीं है, डोंट वरी, आपको 1 साल का टाइम मिलता है उसको कंप्लीट करने का, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है कि अगर आपका सारा वर्क कंप्लीट है, आपको कोई प्रोविजनल फाइल नहीं करना, योर वर्क इज रेडी, your research paper is ready but it is unpublished. Now first go is to file the patent first for that paper. After then you can go for publication. कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए हम लोग इन्वेंटर से क्या चाहिए होता है, हम लोगों को, हम लोग पहले एक इन्वेंटर से एब्स्ट्रैक्ट मंगाते हैं जिसको नॉवेल्टी चेक करते हैं, उसके बेसिस पे हम एक रिपोर्ट शेयर करते हैं। फिर उसके बाद हम अपने क्लाइंट से बोलते हैं जो भी वर्क आपका कंप्लीट है तो उसका आप मुझे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंशन, आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन, आपके क्लेम्स, आपके ड्राइंग्स, ये सब चीजें आप हमें प्रोवाइड कीजिए और उसके बेसिस पे ही हम आपका पेटेंट आगे जो है वो फाइल करेंगे। नेक्स्ट आपका है फीस। फीस जो है इंडियन पेटेंट फाइलिंग की आपकी 1600 नॉर्मल स्टार्टअप की फीस है। तो आपका जो पेटेंट है ये पूरा एक चार्ट है जिसमें प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 12 महीने में आप कंप्लीट करेंगे और 18 महीने में आपका पेटेंट पब्लिश होता है। अगर आप अर्ली पब्लिकेशन के लिए जाते हैं तो फॉर्म 9 फाइल होता है और फिर एग्जामिनेशन फॉर्म 18 फाइल करेंगे और फाइनली पेटेंट आपका ग्रांट हो जाता है। ये फाइनल सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट आपको देती है। दिख रहा है आपको मेरा सर्टिफिकेट? इज इट विजिबल?
No. यस यस, ये देखिए, दिस इज द फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि पेटेंट के लिए आपको मिलता है ब्लू कलर का। इसमें पेटेंट नंबर लिखा है, एप्लीकेशन नंबर लिखा है और पेटेंटी का नाम लिखा है। अब यहाँ पे पेटेंटी क्या है, जो कॉलेज होगा, इंस्टीट्यूट है, जैसे एमटी यूनिवर्सिटी का नाम मैं बोलूँ या आपके कॉलेज का नाम जो होगा वो इसके ऊपर आएगा। तो ये फाइनल आपको सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट से इशू होता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ कॉपीराइट्स की। कॉपीराइट्स आपके आर्टिस्टिक और लिटरेरी कैटेगरी के लिए होता है। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आप कॉपीराइट फाइल करते हैं। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम बनाया, आपने कोई बुक लिखी है, कोई पोइट्री लिखी है, कोई रिसर्च पेपर है जो कि अनपब्लिश्ड है, मैनेजमेंट से कोई रिसर्च पेपर है जो कि आप फाइल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉपीराइट फाइल कर सकते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग्स वर्क के लिए भी कॉपीराइट फाइल होता है। कॉपीराइट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका पेटेंट। कॉपीराइट के लाइक लीगल राइट्स होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं, और कॉपीराइट की वॉयलेशन अगर कोई राइट्स को करता है तो उसके लिए सिविल सूट के अंदर उसको जेल भी हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि भैया आप जो भी इंटरनेट से चीजें उठा रहे हैं तो कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो प्लीज उसका उसका रेफरेंस जरूर दें, ठीक है। कॉपीराइट जो है सिविल लॉ के अंदर आता है और जिसके लिए आपको इम्प्रीजमेंट, जेल भी हो सकती है और पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। इसीलिए वी एडवाइज अवर क्लाइंट, डू नॉट यूज, रिप्रिंट, रिप्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रायर परमिशन। अवॉइड प्लेजरिज्म, अवॉइड करें। एक्नॉलेज करें, एब्स्ट्रैक्ट समरी को अपनी लैंग्वेज में लिखें। कॉपीराइट वॉयलेशन लीड टू क्रिमिनल सूट। अब आपके पास अगर कॉपीराइट वर्क है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट अगर आपके पास अवेलेबल है जो कि अनपब्लिश्ड है, आप हम लोगों को भेजेंगे। हमारे पास फॉर्म 14 होता है, एक एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जिसपे आपको यूनिवर्सिटी को अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, वो अगर कॉपीराइट फाइल कर रहा है ऑथर, तो उसके लिए उसके साइन जाते हैं, ठीक है, और फॉर्म 14 में उनकी डिटेल्स जाती हैं। और ये फाइनल सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, जिसके ऊपर एल लिटरेरी कैटेगरी का नाम है कि किसी ने कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिख दी, कोई रिसर्च पेपर था जो फाइल किया है, और इसमें ऑथर का और कॉलेज का भी दोनों का नाम अवेलेबल होता है। नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव अ डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन मैंने आपको बताया, कोई भी बच्चे के दिमाग में कोई भी डिजाइंस है तो उन डिजाइंस को आप कैड पिक्चर्स पे, कैड सॉफ्टवेयर का यूज करके लाइन डायग्राम बना सकते हैं, कोरल सॉफ्टवेयर का यूज करके डायग्राम बना सकते हैं, और उनको 2D 3D शेप्स बना के हम पेटेंट ऑफिस में फाइल करते हैं, ठीक है। डिजाइन के लिए आपको कोई टेक्निकल लिटरेचर नहीं चाहिए, मतलब टेक्निकल डेटा नहीं चाहिए, यू जस्ट हैव टू गिव द डिजाइंस। तो आप हमें टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट साइड व्यूज के डिजाइन हमें देते हैं, हम लोग उसको पेटेंट ऑफिस में शॉर्ट टाइटल देके उसको फाइल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ, एक्सटेंडेबल बकेट, ठीक है, आपने एक बकेट बनाई है जो एक्सटेंडेबल है, ठीक है, कि अभी अगर सपोज आपको ज्यादा पानी चाहिए तो आपको बड़ी बाल्टी की जरूरत होती है, कम पानी चाहिए छोटी बाल्टी की जरूरत, तो मैंने एक बाल्टी बनाई जो कि एक्सटेंड हो सकती है। उस एक्सटेंडेबल बाल्टी को आप डिजाइन में फाइल करें तो हमें उसकी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, मुझे उसके सिर्फ डिजाइन चाहिए। तो आप उनको टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट साइड व्यूज के डिजाइन प्रिपेयर करके, अगर आपके पास प्रोडक्ट भी रेडी है तो आप प्रोडक्ट की भी हमें जो पिक्चर्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फाइनली देखो रजिस्टर्ड डिजाइन है। डिजाइन नंबर आपको जैसे पेटेंट नंबर एलोकेट होता है वैसे डिजाइन नंबर एलोकेट होता है। टाइटल है स्मोक डिटेक्टर कवर, छोटा टाइटल। डिजाइन के केस में पेटेंट ऑफिस का कहना है कि आप डिजाइन छोटे से छोटा टाइटल उनको दें ताकि ऑब्जेक्शन जो है वो कम आए। नेक्स्ट आपका ये इंडस्ट्रियल डिजाइन, अगेन ये डिजाइन पेटेंट है यूएस का, जहाँ पे स्मार्ट अलार्म क्लॉक उन्होंने फाइल की है। द परफेक्ट अलार्म क्लॉक दोज हु नेवर गेट आउट ऑफ द बेड। आपने एक अलार्म क्लॉक बनाई है जिसके ऊपर आप जब तक खड़े नहीं होंगे इट विल नॉट स्टॉप रिंगिंग, सो इट्स अ डिजाइन पेटेंट। नेक्स्ट आपने एक लाइन ड्रॉ की है सिर्फ एक कप के अंदर, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, जो भी आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो उसकी जो लाइन से क्या हो रहा है वो सारा जो ड्रॉप है वो जाके वहां पे कलेक्ट हो रही है। तो फाइनली कहने का मतलब है कि फॉर अ पेटेंट, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैंट बिलीव कि मैं शुरुआती यूनिवर्सिटी में जब मैंने एमओयू किया था, दे डोंट हैव एनी सिंगल पेटेंट। So now they people within a 2 years they have crossed 50 applications for design, 50 applications for copyright and 40 applications for patent within 2 years. And उनके जो ग्रांटिंग रेशियो है वो भी दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कहने की बात है कि आप लोगों के पास भी जो भी आइडियाज है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आइडियाज पेटेंट नहीं हो सकते, वो डिजाइन नहीं हो सकते, कॉपीराइट नहीं हो सकते, वो हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। लोगों को पता नहीं है, फैकल्टीज को पता नहीं है कि जो हमारे आइडियाज है वो किस फॉर्म में हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस वे में उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पेटेंट के लिए जाएं, कॉपीराइट के लिए जाएं। तो उसके लिए वी विल हेल्प यू। जो भी आपके डिजाइन है, जो कॉपीराइट है, वो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे उनको रजिस्टर करने में।
सो दिस इज माई अगेन सर्टिफिकेट ऑफ द डिजाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको विद इन 1 साल आपको ग्रांट हो जाता है पेटेंट ऑफिस से। नेक्स्ट आपका आता है जीआई। जीआई इज नेम और साइन यूज्ड और गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। आप आगरे का पेठा खाते हैं, दार्जिलिंग टी पीते हैं, ठीक है, तो एक स्पेशल प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर ओरिजिनेट हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से, और क्यों क्यों जीआई टैग रजिस्टर करें, क्योंकि उसकी कुछ खासियत है, उसके उसकी मिठाई के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि उस एरिया के अंदर उस प्रोडक्ट को फेमस बना रहे हैं। जैसे बंगाली रसगुल्ला, तो लोगों ने सोचा कि जब हम पेटेंट कर सकते हैं, ट्रेडमार्क कर सकते हैं, कॉपीराइट कर सकते हैं, व्हाई नॉट जीआई। तो हमें भी अपने प्रोडक्ट जो ओरिजिनेट हो रहे हैं हमारे पर्टिकुलर एरिया से, जिस जोग्राफिकल लोकेशन, जिस जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो एट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो उनको भी उनको रजिस्टर करना चाहिए। तो इसीलिए जीआई टैग जो होते हैं वो आपके रजिस्टर होते हैं। इंडिविजुअल और यूनिवर्सिटी सॉरी इंडिविजुअल और ये जो फर्क होता है अदर आईपीआर में, इसको एक पर्टिकुलर एरिया के जो टेरिटरी के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो वहाँ की कम्युनिटी होती है, वो इसको रजिस्टर करती है, वो इसको फाइल करती है, ना कि एक इन्वेंटर इसको फाइल करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपेयर विद द जीआई। नेक्स्ट लास्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मतलब है कि ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि ट्रेड सीक्रेट रहे। भाई मेरी कोई स्ट्रैटेजीज है, मेरा बिजनेस कैसे ग्रो करना चाहिए, तो वो मेरा एक ट्रेड सीक्रेट है। तो उस ट्रेड सीक्रेट को आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि रिवील नहीं करना चाहते, so you can have an NDA with them, so you can have a trade secret. You don't have to file any patent for that. You don't have to file for trade any copyright for that. Just an agreement between the two parties and you have a trade secret. Advantage क्या है? Longer protection रहती है, cheaper है कि because आपको कोई पैसे नहीं देने हैं as compared with the patent filing fees और copyright filing fees और trademark filing fees. डिसएडवांटेज क्या है कि रिवर्स इंजीनियरिंग होने के चांसेस होते हैं ट्रेड सीक्रेट के अंदर। ट्रेड सीक्रेट में आप कोई भी फॉर्मूला, कोई रेसिपीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स और कोई भी रेसिपीज को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी में आपको एक अच्छी केस स्टडी यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हल्दी का जो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए नोन एक पेटेंट था जो कि इंडिया में ग्रांट नहीं हुआ था, यूएस में ग्रांट हुआ था। फाइनली लोगों ने कहा कि मैम हल्दी पे पेटेंट मिल गया, हम लोग क्यों पीछे हैं, हम लोगों को क्यों नहीं पेटेंट मिलते, हम लोग क्या करते हैं। वो पेटेंट फाइनली जो मिला इंडिया यूएस में, वो फाइनली रिजेक्ट हुआ था। सीएसआईआर ने जब उसको रिवोक किया, जब सीएसआईआर ने पेटेंट ऑफिस यूएस में ये बताया कि ये जो हल्दी का पेटेंट वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए आपने फाइल किया है, दैट वाज ऑलरेडी अवेलेबल इन द आयुर्वेदा। हमारे आयुर्वेदा में, यूनानी में हमारे पास जितने भी एविडेंसेस है उसमें सब में लिखा है कि हल्दी का लेप का क्या फायदा है। हल्दी को पुराने टाइम से ही वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए नोन है। हमारे पास जो एविडेंसेस है जिसके बेसिस पे जो पेटेंट फाइनली ग्रांट हुआ वो रिजेक्ट हुआ। तो मीनवाइल कि अगर आप पेटेंट ऑफिस में कोई पेटेंट फाइल करते हैं और ग्रांट हो जाता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट नहीं होगा, कोई भी उसके पेटेंट को अपोज कर सकता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, वन इज प्री ग्रांट ऑपोजिशन एंड सेकंड इज पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। प्री ग्रांट ऑपोजिशन का मतलब है ग्रांट होने से पहले कोई भी एक्स पार्टी आपके पेटेंट को अपोज कर सकती है, चैलेंज कर सकती है, कोर्ट में लेके जा सकती है। पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन का मतलब है ग्रांट होने के बाद पेटेंट को कोई भी 1 साल के अंदर, टाइम लिमिट है, विद इन 1 ईयर उसको चैलेंज कर सकता है। सो दिस इज द प्री एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन ऑफ द पेटेंट एंड दीज आर द यूजफुल लिंक्स। www.ipindia.nic.in पे जाके आप जो भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन हम फाइल करते हैं, आप उन पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि पूजा मैम ने जो पेटेंट फाइल किया है उसका स्टेटस क्या है। www.ipindia.nic.in पे जाके आप कोई भी स्टेटस से रिलेटेड, कोई भी रूल से रिलेटेड, कोई भी इंडियन पेटेंट ऑफिस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड दिस इज माय नंबर 9910627125. For any queries, any discussion, you can contact. Thank you very much. Thank you, ma'am, for such a wonderful session. Dr. Arvind Pandey, sir, are you there? Yes, sir. I am connected. Okay, sir. So we have to proceed forward. Any faculty member, if you have any query to discuss, please ask. हेलो पूजा मैम। हाँ जी सर। मैम
in the discussion you said that their software patent is not possible, right? Whether how it how we are going it, नहीं when नहीं they are going for some software patent, when they are going the software patent regarding on the startup, what will the procedure and all things all will be there? सचिन, हाँ सर, मैंने ये बोला था सॉफ्टवेयर पेटेंट पॉसिबल है ओनली व्हेन इट इज एम्बेडेड विद हार्डवेयर. आपको पेटेंट ऑफिस को उनको If I am हार्डवेयर going के for the साथ. pure software, if I go for the हाँ. pure software giving it, let's say Yes. I am developing something which is like you know energy management, which is helpful in energy management system. But this is the pure software. Whether I can go for the patent or not. Hello. Hello. I guess he's not connected. Hello. हेलो. यस सर. Yes, ma'am. Are you getting my हाँ voice? हाँ 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 हाँ, यस सर, यस सर, हाँ. अब बोलिए सर. If I अगर am आपको placing a एनर्जी software मैनेजमेंट. having some like my question is if I'm placing a software as my startup, like where there are very softwares which is like the startups, like we have food startups, we have Ola and all, but they are basically only a software. There is no use of hardware in it. I can't for the for the patent like this. नो नो सर, दे डू. सो ओला और उबर का जो कंसेप्ट है सर, दीज आर नॉट पेटेंटेड. हाँ. ओके, देयर नेम इज ट्रेडमार्क. ओके, ओला का नाम जो है वो ट्रेडमार्क में, बट दे आर बिजनेस स्ट्रेटजीज. ये Okay. सब बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं जो कि कॉपीराइट हो सकती है पर पेटेंट नहीं हो सकती. बट इन यूएस वी हैव लॉट ऑफ पेटेंट्स ऑन सॉफ्टवेयर कैटेगरी, जहाँ पे उबर के आपने देखा होगा बहुत सारे पेटेंट फाइल्ड है. सो देयर इज अ सिस्टम लाइक इंडियन पेटेंट ऑफिस, और यूएस में या यूरोप में बात करती हूँ तो हर एक इंडियन पेटेंट ऑफिस का अपना एक क्राइटेरिया है. तो हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में सॉफ्टवेयर पेटेंट नहीं होते हैं, वो कॉपीराइट में फाइल होते हैं. बट अगर आप उसको सिस्टम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तब वो फाइल हो सकते हैं. बट पेटेंट ऑफिस का रूल है कि आपको हार्डवेयर लिंक करके ही दिखाना होगा. मैम इन सिस्टम वी नीड टू पुश फॉर हार्डवेयर. कोई तरीका नहीं है हाँ, कि हम. हार्डवेयर तो दिखाना होगा सर. अच्छा तो वरना वो मतलब सेक्शन 3K में डाल देते हैं. 3K का मतलब ही ये है कि हार्डवेयर नहीं है आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में. इसका मतलब ये है कि हम 100 बिलियन इंडस्ट्री जो सॉफ्टवेयर में डालते हैं सब वेस्ट हो जाएगी. नहीं 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 सर, वेस्ट नहीं होगी. तभी मैं बोल रही हूँ ना, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारे आईपीआर में डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि अगर आप Okay. पेटेंट के लिए नहीं जा रहे तो आप कॉपीराइट पे प्रोटेक्शन ले सकते हैं. हाँ, what is that मैम एक्चुअली? और कॉपीराइट के लिए जब आप कॉपीराइट प्रोटेक्ट करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो, और प्लस ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड अगर है तो वो आपको हाँ. प्रोवाइड करना होता है कॉपीराइट में. विद इन 2 मंथ्स आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हो जाता है. गुड. थैंक यू मैडम. ओके. Anyone else, please ask. Not only ask, please discuss your doubt and any case study if you have, please discuss with ma'am. Any research paper you people have in your hand that was unpublished, okay, तो उन unpublished work को भी हम पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं. सेकेंड, अगर कोई पब्लिश वर्क भी है तो देन यू हैव टू सी द डेडलाइन. लाइक पेटेंट ऑफिस का रूल है कि अगर कोई पब्लिश कर भी दिया आपने पेटेंट तो विद इन 1 ईयर आप उसके ऊपर पेटेंट फाइल कर सकते हैं. तो यू हैव टू चेंज द टाइटल, यू हैव टू चेंज द वर्क, और जो डिस्क्लोज है ऑलरेडी वर्क उसको ना करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके देन ओनली यू कैन गेट अ पेटेंट ऑन सच टाइप ऑफ थिंग्स. Ankur sir, any query from your side? Ma'am, हाँ जी सर, पूछिए. ma'am, there was one of my work. The work was biofilter using herbal technology. Right. वेरी गुड, वेरी तो नाइस. ओके, उसमें हमने कुछ हर्बल टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी हमें पता है कि नीम एंड ऑल होता है, हमने उसमें थोड़ा सा चारकोल और ये जो सलजम की सब्जी होती है उसका एक बेड लेयर बना करके एक आइडिया बनाया, राइट. और उसको जब फिल्टर किया तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ.
बट द क्वेश्चन इज कि ये थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड फैक्टर है, तो कैन वी गो फॉर दिस पेटेंट एंड ऑल? हाँ मतलब हाँ, अभी बायो ये पेटेंट के लिए जा सकते हैं, जिसमें हम बायो फिल्टर ही पेटेंट करेंगे जो कि ट्रीट कर रहा है कंटामिनेशन को, ठीक है? हाँ, ट्रीट कर है रहा है ना? कंटामिनेशन, हाँ कंटामिनेशन ऑफ वेस्ट वाटर, जिसमें वेस्ट वाटर जो भी कंटामिनेशन है उसको, पर आपको ये रिजल्ट दिखाने होंगे कि हाँ। पहले जो वाटर था जो अनप्योर था उसमें क्या इम्प्योरिटीज थी, और बायो फिल्टर यूज करने से हमारी जो प्योरिटीज है कितनी फिल्टर आउट हुई, और क्या उसकी अब वाटर की क्या वैल्यू वो निकल के आई है, मतलब टेस्ट बट रिजल्ट सर आपको। बट मैम डब्ल्यूएचओ के कुछ परमिसेबल लिमिट्स होते हैं, हाँ। राइट? कि टर्बिडिटी इतनी होनी चाहिए, और ये हम्म। थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है? हम्म। तो क्या इसमें कोई ऐसा हर्डल तो नहीं है कि जो हमें परेशान करेगा, या हमें फिर कोई कहीं और से परमिशन लेना पड़ेगा कि ये देखो, हेल्थ इश्यू? हाँ, इसके लिए ये है कि जो भी चीज बॉडी के अंदर जा रही है, अगर कोई कैप्सूल आप बना रहे हैं, कोई ड्रग आप हाँ बना रहे हैं, तो उसके लिए हाँ, कहीं ना कहीं से कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत जरूर होती है, बिकॉज वो राइट आप कंज्यूम करें ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है? राइट राइट अब अगर मैं राइट। बात कर रही हूँ कि यहाँ पे हम बायोफिल्म बना रहे हैं जो कि सपोज वाटर फिल्ट्रेशन के अंदर यूज करेंगे, और उससे क्या होगा कि वो सेफ है, और उसमें जो इंग्रेडिएंट है, अब देखो चारकोल में तो कुछ ऐसा नहीं है ना, नहीं चारकोल हुआ, नहीं, और आप शलगम भी यूज कर रहे हो, वो भी आपकी नेचुरल है, ठीक है? राइट। तो आपको क्या करना होगा, आप अब उस पानी को अभी मुझे कंज्यूम करना है, तो उसको कहीं ना ओके कहीं आपको टेस्टिंग जरूर करानी होगी, सो दैट कि ओके, ये आपको पेटेंट के लिए नहीं, बट अगर कल को कमर्शियली करते हो, सपोज आपने पेटेंट फाइल करने के बाद कैंट से बात की कि भाई मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और अगर आप अपने कैंट आरओ में यूज करेंगे तो दैट वाज ए रिमार्केबल, यू कैन से वेरी वेरी गुड रिजल्ट। तो ओके कैंट अगर इंटरेस्ट शो करता है तो कैंट आपसे पूछेगा कि डू यू हैव एनी सर्टिफिकेशन फॉर दिस, तो अच्छा उसके अच्छा, लिए यू नीड अ सर्टिफिकेशन। फॉर ओके पेटेंट यू डोंट नीड एनी सर्टिफिकेशन। पेटेंट का मतलब है दे वांट कि आपने कोई नया कुछ इन्वेंट किया है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने निकाला है, और उसके लिए आपके पास कुछ एफिकेसी, कुछ रिजल्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए। ओके ओके, ओके, थैंक यू डॉक्टर अरविंद पांडे सर। Pooja ma'am, in last month, I have filed patent on UV rays based shoe sanitizer, ओके, and it is under the process of development of that product, and prototype we have developed also. ओके, The question is, मान लीजिए हम इसको एज अ प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं, एंड डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू हेल्थ, और यूवी रेज का हमारे बॉडी पे अदर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो क्या इससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट से या किसी बॉडी से हमें हाँ, सर्टिफिकेट लेना ये होगा? आपको, यस यस यस, क्योंकि जब आप किसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी बात करेंगे, सपोज आपने ये काम मुझे दिया कि पूजा यू फाइंड आउट सम कंपनीज फॉर दिस, जैसे अभी हमारे पास कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे ही आए हुए हैं, उन्होंने कुछ मिल्क से रिलेटेड एक डिवाइस बनाई है जिसके लिए कंपनीज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वी फाउंड सम कंपनीज ऑन इंडिया मार्ट। तो उनका क्वेश्चन पहले यही था कि मैम आपकी ये जो प्रोडक्ट है जो क्लाइंट ने आपके बनाया है, इसका पहले तो प्रोटोटाइप रेडी है कि नहीं, और सर्टिफिकेशन है कि नहीं। ओके, है, क्योंकि आप मिल्क पे टेस्ट करेंगे तो मिल्क के लिए फिर उनको सर्टिफिकेशन चाहिए, तो उनका सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन होता है कि सर्टिफिकेशन जरूर होना चाहिए आपके पास। ठीक है। you will take one certificate, and after that you can start selling that product to some companies. तो इससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन होगा उसका डिपार्टमेंट क्या होगा? आपको कुछ आइडिया? यूवी रेज से रिलेटेड है तो रेडिएशन वाले सर चेक कीजिए आप, ओके। है ना, तो वही आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। हमारे साथ एम्स के कुछ डॉक्टर्स भी हैं एसोसिएटेड, हाँ, तो अभी उसमें जो भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस हम लोगों ने शुरू नहीं किया है वैसे, हाँ, अभी प्रोटोटाइप डेवलप करके अंडर ट्रायल है प्रोडक्ट कि हम जो भी यूज कर रहे हैं वो एफिशिएंसी उसकी क्या है और ड्यूरेबिलिटी क्या है। यूवी सैनिटाइजेशन शूज आपने बनाया है? शूज को सैनिटाइज करने के लिए यूवी रेज बेस्ड एक सैनिटाइजर बनाया, हम आपको Okay. शेयर कर लेंगे हाँ, पेटेंट आईडी जो भी है। तो आप एक काम कीजिए ना सर, जो भी जी। ये आपने जो यूवी के लिए बस थोड़ा आपको ये करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे मार्केट में यूवी शू सैनिटाइजर डिओड्राइजर भी है, ठीक है, तो उनकी कुछ इंटेंसिटी होती है कि इतनी इंटेंसिटी पे बैक्टीरिया वायरस को फंगस को खत्म कर रहे हैं।
ठीक है, तो जो वो प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक है, तो आप उन प्रोडक्ट्स को इंडिया मार्केट, जैसे आप अमेजोन पे जब जाएंगे ना सर, अमेजोन पे आपको ऐसे प्रोडक्ट दिख जाएंगे, तो उन कंपनी से बात कर सकते हैं कि इनके इनके आपके पास इनके सर्टिफिकेशंस के लिए क्या है, कैसे प्रूफ करेंगे कि ये सेफ है कि नहीं, ओके ओके। है ना, तो वहां से आपको आइडिया मिल सकता है। इस पे हमारा एक डिजाइन भी है और एक नॉन प्रोविजनल भी फाइल किया है। डिजाइन का आई थिंक अभी अप्रूवल मिलने वाला है ओके। विद इन 1-2 मंथ्स, हम्म। एंड प्रोविजनल अभी लास्ट 2 महीने पहले किया है इसको। ओके, तो वो सर आपने स्टार्टअप के थ्रू किया ऐसे ही? नहीं नहीं, पर्सनल। ओके, अच्छा, ये जो सैनिटाइजर बनाया आपने, शूज डिसइंफेक्टेंट, इसकी जी, कॉस्ट कितनी है? अभी अंडर डेवलपमेंट है, बट अराउंड 6,000 आएगी मैम मैम कॉस्ट। क्योंकि मार्केट में मैंने देखा इसकी ऐसे ऐसे हैं जो स्टेरलाइज कर रहे हैं शूज को यूवी लाइट से, और उनकी जो कॉस्ट है वो 20-20 हज़ार रुपए है। यस यस, 15 से 20 है। सो वी कैन से कि ये हमारा मोर कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट रहेगा मार्केट में। और इट डिपेंड्स, अभी डेवलपमेंट में आए पूरी तरह तब तो। ठीक है, मैं आपको एक काम कर सकती हूँ इसमें, जी, आपको हम कुछ कंपनीज रिसर्च करके देंगे, ठीक है, ओके मैम, कि ओके, कौन इसमें हमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकता है कि कितना सेफ है हमारे लिए ये, श्योर श्योर। ठीक है। एनी अदर कोई क्वेश्चंस फ्रॉम द फैकल्टी? और कोई क्वेश्चन फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ईसी डिपार्टमेंट, सिविल, सीएस, कोई भी फैकल्टी मेंबर, किसी भी तरीके का डिस्कशन करना हो आपको, प्लीज आस्क। अभी तक कितने पेटेंट सर हो चुके हैं हमारे कॉलेज से? मैम कॉलेज कॉलेज से एक हुए हैं, इंडिविजुअल कैटेगरी में 3-4 हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। फैकल्टीज के रिसर्च पेपर्स भी हैं सर? जी यस जी, मैम, रिसर्च पेपर रिसर्च पेपर्स तो काफी हैं। ओके, तो वो जो पेपर्स हैं वो अनपब्लिश्ड है या पब्लिश्ड है? मैम पब्लिश है, मोस्ट कुछ पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी के काम है तो उसको पब्लिश करने वाले हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर हम अपने कॉलेज की रैंकिंग बनानी है नैक के और एनआरएफ के लिए, नेक्स्ट ईयर भी जाएंगे, तो आप जी, जो भी पेपर लिख रहे हैं बच्चे, जो भी फैकल्टीज हैं, सॉरी, ठीक है, उनको आप एडवाइस कर सकते हैं कि आप उन पे पहले पेटेंट फाइल कर लीजिए, उसके बाद वो पब्लिकेशन के लिए जाएं, ठीक है। है मैम ना। वही हमारा रोड मैप है। हाँ, तो उससे क्या होगा कि इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और उससे हमारा जो एक नंबर ऑफ पेटेंट फाइलिंग का एक रेट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, नंबर। यस यस, And we श्योर मैम। also advise, like suppose मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, तो मैकेनिकल में आपको, अगर आपको कोई इन्वेंशंस के टाइम, मतलब आपको एडवाइस चाहिए कि मैम इसमें किस किस टाइप के पेटेंट ऑलरेडी फाइल्ड है, अगर आपके पास कंसेप्ट भी है तो उस पर भी हम आपको वर्कआउट करके एक रोड मैप बना के दे सकते हैं। ओके ओके ओके। मैम पेटेंटेबिलिटी भी चेक करेंगे आप? हाँ, देखो, हमारा जो प्रपोजल रहेगा वो हम क्या करेंगे, सारे फैकल्टीज को एक इन्वेंशन डिस्क्लोजर फॉर्म सेंड करेंगे। इन्वेंशन डिस्क्लोजर फॉर्म में आपसे हम कंटेंट मंगाते हैं, भाई आपका प्रोटोटाइप रेडी है कि नहीं, आपके कुछ क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आप हमें एक बना के दे दीजिए, कोई डायग्राम है तो उसके साथ अटैच करके दे दीजिए। वो जब इन्वेंशन डिस्क्लोजर फॉर्म आप हमें भेजते हैं तो हम एक रिपोर्ट बना के आपको भेजेंगे। देखिए, मैं आपको एक शेयर करती हूँ स्क्रीन पे, एक मिनट, स्क्रीन में मैंने आपको स्क्रीन शेयर किए, इज इट विजिबल? नो मैम। नहीं, एक मिनट प्लीज। अच्छा, ये कैंसिल करना होगा क्या अभी दोबारा से? गूगल पेटेंट मैं आपको बताना चाह रही थी यहाँ पे कि हमारा एक गूगल पेटेंट है सॉफ्टवेयर, ठीक है, आप सब लोग ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आप कुछ भी कीवर्ड डालेंगे, ठीक है, जैसे अब कोई भी एक कीवर्ड डालिए, ठीक है, एक्सटेंडेबल शूज, ठीक है, मैंने एक शूज बनाए हैं जो एक्सटेंड हो सकते हैं, मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज छोटा बच्चा है, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस मैम, यू आर ऑडिबल, हाँ, ठीक है। ओके।
I think my screen is not sharing. Just Yeah. here, just wait. Share. Hello, Yes, sir. डायरेक्टर सर, Yes, sir. बोलिए प्लीज. क्या करें आगे? नहीं हाँ मैम हाँ, connected देखिए है अभी. गूगल पेटेंट देखिए, अच्छा। ये गूगल पेटेंट मैंने ओपन किया है, दिख रहा है सर? Yes, ma'am. हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके आइडियाज हैं, आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क आपको दे रही हूँ कि आपके जो भी आइडियाज हैं, ठीक है, अगर आपको खुद से भी रिसर्च करने हैं कि भाई वो आइडिया ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं, तो उसको अपने होमवर्क आप कर सकते हैं, आप खुद से उन्हें चेक कर सकते हैं कि वो पेटेंट के लिए जाना चाहिए या उसमें आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे Okay. सपोज एक्सटेंडेबल शूज, या फिर जैसे सर का ही था यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस, Shoes. हाँ, sanitizing device for shoes, device for shoes, ठीक है, फुटवेयर स्टेरिलाइजर, ठीक है। तो अगर मैं इसे क्लिक करती हूँ, एक पेटेंट, ये पूरा पेटेंट खुल के आता है, देखो एक शू स्टेरिलाइजर है जिसके अंदर एक यूवी रे लैम्प है प्रोवाइडेड टू स्टेरिलाइज द इनसाइड ऑफ द शू सिंपली बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ड्रॉअर एंड लेटिंग एन यूवी रेज लैम्प गो ऑन द अपर साइड ऑफ द शू। अब जब आप ये पेटेंट खोलेंगे पूरा डिटेल, ये कोरिया का पेटेंट है, देखिए यहाँ पे कोरिया लिखा है, कोरिया का पेटेंट है, यहाँ पे इन्होंने डायग्राम्स दिए हैं। जब भी पेटेंट में आप फाइल करते हो तो पेटेंट में हमेशा याद रखना कि लाइन डायग्राम्स जाते हैं। मैकेनिकल में हम जब पेटेंट फाइल करते हैं तो लाइन डायग्राम्स आते हैं और डायग्राम्स के ऊपर आपको कुछ भी कंटेंट टेक्स्ट में नहीं लिखना होता, सिर्फ 1 2 3 आपको रिप्रेजेंटेशन देना होता है कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, ठीक है। ये डायग्राम हो गया जो कि आप इंडस्ट्रियल डिजाइन में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, अब इसके अंदर इन्होंने जो इंक्लोजर जो बताया है कि हमने एक इंक्लोजर बनाया है जो कि डिवाइस है जो कि कंट्रोल कर रहा है यूवी लाइट के लिए, उसके लिए इन्होंने बताया कि 10 नंबर क्या है, ड्रॉर है, 12 स्लोप है, 20 इंक्लोजर है। ये सारी चीजें आपको मैकेनिकल की जब हम पेटेंट फाइल करते हैं तो उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी फिगर्स को ऐसे डिस्क्राइब करना होता है। तो फिगर 1 में जो जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली आप डिस्क्राइब करेंगे, फिगर 2 में जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पेटेंट है जो कि पूरा, जैसे अभी सर का जो पेटेंट है उसको अगर आपको सर को स्टडी करना है कि अगर इन पेटेंट्स में भी कोई नीचे सर्टिफिकेशन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, तो सर को यहाँ से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पेटेंट आप डिवाइस जो है नॉन पेटेंट के लिए भी चेक कर सकते हैं, दूसरा डिजाइन के लिए भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि मैंने डिजाइन पे क्लिक किया तो ये डिजाइन निकल के आ गया शू का, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया मिल सकता है कि आपके दिमाग में जो डिजाइनर जो ऑलरेडी नोन चीजें हैं वो कितनी अवेलेबल है। तो ये गूगल पेटेंट के अलावा एक और डेटाबेस है जो बहुत ही अच्छा है, दैट इज कॉल्ड ई स्पेस नेट। ये सेकंड डेटाबेस है ई स्पेस नेट जो कि हम लोग सर्च करते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड डेटाबेस है। आप इस पे जाएंगे, ठीक है, इस पे भी आप कीवर्ड्स डालेंगे, यहाँ पे फोल्डेबल बकेट, ठीक है। आपने फोल्डेबल बकेट डाला और फोल्डेबल बकेट का अगर आपको पेटेंट देखना है कि ऑलरेडी फोल्डेबल बकेट है कि नहीं, आप देखो यहाँ पे जेपी का पेटेंट आया है, चाइना का पेटेंट आया है, तो ऐसे पेटेंट ऑलरेडी मार्केट में है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस इन एवरी पेटेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेटेंट में, सब में कहीं ना कहीं कोई डिफरेंसेस होता है। आप एक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के एक आइडिया लगा सकते हैं कि इनके पेटेंट में और हमारे पेटेंट में क्या फर्क है। ये देखिए यहाँ पे नीचे बकेट का डिजाइन भी दिया हुआ है इन्होंने, ये देखिए, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल सकता है कि हमारी इन्वेंशन और इनकी इन्वेंशन में क्या फर्क है। तो इसी प्रायर आर्ट को इन डेटाबेसेस में जाके हम लोग सर्च करते हैं और एक रिपोर्ट बना के अपने क्लाइंट। Ma'am, you are not audible. अंकुर सर, है तो आप पूछ लीजिए। मैम, हाँ जी सर। मैम अगर आपने कहा कि हार्डवेयर की जरूरी है, तो क्या कोई एल्गोरिथम इस रिसर्च पेपर में हमें पेटेंट नहीं कर सकता? सर मैंने कहा ना, पेटेंट करोगे ना,
अगर सॉफ्टवेयर पे ही ऐसे जाते हो तो पेटेंट ऑफिस आपको सेक्शन 3K में डाल देगा। पेटेंट फाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइल तो आप कभी भी कर दो, पर जब एग्जामिन होगा तो वो फिर ग्रांट नहीं होगा जब तक कि आप उनको हार्डवेयर नहीं बताएंगे। अच्छा, मैं अगर एल्गोरिथम को हार्डवेयर पे रन करा के इसको डेवलप हाँ, तब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं आप। ओके ओके, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को कहीं हार्डवेयर में पॉसिबल दूंगा। हाँ, जैसे आप देखो डायबिटीज का एक्को चेक का एग्जांपल लो, डायबिटीज मॉनिटरिंग डिवाइस, ठीक है। अब उसमें क्या है, वो सॉफ्टवेयर ही तो है, एल्गोरिथम ही है जो कि क्या कर रहा है, घर पे बैठ के आप अपने डायबिटीज को चेक कर पा रहे हैं, ओके है ना। हार्डवेयर लिंक्ड है उसके अंदर, कि आप अपना एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड डालते हैं और तभी आपको रिजल्ट्स आ जाता है, रीडिंग्स आ जाती हैं। तो वो पूरा एक डिवाइस जो है वो डिवाइस पेटेंट है, डायबिटीज मॉनिटरिंग डिवाइस। तो अगर आप एल्गोरिथम आपके पास है तो आपको इम्बेड करके दिखाना होगा किसी हार्डवेयर के साथ कि कैसे चल रहा है। ओके, मतलब अच्छा, वो मैक्सिमम किसी फिनटेक की तरह जाना चाहिए या हम मतलब बायोलॉजिकल जरूरी तो है नहीं। सर आपकी आवाज कट रही है। सर हाँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी ये तो ऐसा हो गया कि किसी बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का हम इसको एल्गोरिथम के साथ एम्बेडिंग कर रहे हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि शेयर मार्केट क्या हो सकता है, मैं क्वेश्चन है मेरा, शेयर हाँ, मार्केट हाँ, में अगले दिन का क्या क्या रिजल्ट हो सकता है और उसे ये पर्टिकुलर हार्डवेयर की जरूरत है, आप इसी पे शो होगा क्योंकि उसके लिए प्रोसेसिंग टाइम इतना लगेगा, तो ऐसा हाँ, कुछ हो सकता है हाँ, क्या? हाँ, हाँ, इस पे कर सकते हैं हम इसको एक सिस्टम की फॉर्म में बताएंगे कि हमने एक सिस्टम बनाया है जो प्रिडिक्ट कर रहा है फ्यूचर शेयर मार्केट के प्रोसेस को। ओके, और वो उसके लिए रिक्वायर्ड हार्डवेयर अगर हम खाली लिख के शो कर दें वो भी हाँ, चलेगा? बस हार्डवेयर लिख के शो कर दे कि हाँ जी इसके अंदर एक हार्डवेयर लगा है और ये वो हार्डवेयर है। बस, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, ओके। Any other query from anyone? Ankur sir, are you connected? Okay, then Pooja ma'am, thank you so much for Thank you, giving sir. us your valuable time, and it was really good discussion with faculty members and you. एंड आई थिंक ये अभी कुछ लोग अभी सोचेंगे, इस पे समझेंगे, मोटिवेट होंगे, पर्टिकुलरली देखा जाए तो Yes, sir. आफ्टर एमओयू, और जब ये अपना पेटेंट फाइल करने के पोजीशन पे आएंगे देन इनके क्वेरीज फिर से उठेंगे कि इसमें हम क्या कर हाँ, सकते हैं, क्या yes, स्टेप्स sir. होंगे, Yes, sir. तो फिर हम लोग इस पे डिस्कशन फिर रख लेंगे। Thank you, sir. टिल देन थैंक यू सो मच मैम, Thank you. थैंक यू, गुड Thank डे। you. Thank you all. Thank you. Okay. Thank you. ओके। हेलो। हेलो। हाँ सर। Okay, then this is over from our side. ओके सर। Thank you so much, everyone, for connecting. थैंक यू सर। थैंक यू सर।